and gentlemen, we'll open for the Q&A session now. Please raise your hand. Rohit Sharma, is he not available? Yes, unfortunately, we all have seen on TV that Rohit Sharma has been badly injured. And there is a scope of even surgical intervention. So there is a chance that he is going to be assessed in England. And in case if it is required, he might have to undergo surgery. Mr. Vijay Tagore, sir, This guy, for the first time, for a domestic international section, a vice captain has been appointed. Yes. So is there anything to read between, is there any concerns with Virat's fitness or anything because of that? That we'll read in your report tomorrow. In between the lines. Isn't it? From our side there is nothing in between the lines. So why the That he will answer. Well, there is always Ajinkya was the vice captain of the team for the last 1 year. So generally this is the trend that we don't announce it in the home series, but in case if it is necessary that sometimes the captain might go out of the field, there should be somebody who should be taking care of the team, and we are very clear on that, and he is the vice captain of it. Yeah, must say, you said about Rohit Sharma that he might probably have to go to England. That means, are you already rolling him for Test series, series? Definitely not for test series. For the Not for test series. full series? Yes. In case if he doesn't require a surgical intervention, it could be 6 to 8 weeks. If it is required, then it could be more. Okay, then what about KL Rahul and Shikhar Dhawan? Any Shikhar Dhawan has just started his rehab in NCA, and KL Rahul for the first couple of tests he is not available as per our physio report. Sir. Can you elaborate on the injury to Rohit Sharma? What exactly? So it was something like somewhere close to hip flexors. That's where he actually had problem, because I cannot really talk in medical language, but it's got, yeah, it's on the upper thigh region. I think doc being The thigh muscle tendon which has been injured during the earlier series, for which he will be assessed by the specialist. the height always? Right. Thank you. Yes, Bharat. Reasoning behind getting Hardik Pandya is not very much class cricket Yes, I do agree that he has not played much of first-class cricket, but going by his form, see, we at some point of time, all of us have to agree this point that we need to identify right all-rounders. So he is one among the all-rounders that we have right now, the topmost all-rounders. And after this Australia A Tour, if you look at it, his pace has increased. He's able to move the ball much better. His batsmanship has increased, and his overall personality, is just mellowed down a bit, and he's really doing well. If you really see both A series and also this one-day series, did extremely well. And he's one all-rounder whom we think that he's equally a competent bowler and a batsman, along with a good fielder too. Bharat. Does it mean that Rohit's injury and then Karun Nair, twice he has been called to the team, could not play? Yes. Finally he get to play a test match? You can say it as blessings in disguise for it. But we've been grooming Karun Nair. If you look at the last 1-2 years, we've been grooming him. And let's hope, it all depends upon the combination that the captain and coach will be working out. And we are trying to give the best possible combinations. What is with the Bhubaneswar Kumar, the great Kolkata this government? Yes, I think Bhubaneswar, that's a valid question. Bhubaneswar Kumar is just recovering. And actually, as far as the fitness report is concerned, he is available for selection. But we feel that whenever a player comes back, he should play at least a game, a Ranji Trophy game, so that we can really assess him in terms of match fitness. Anand? Mr. Shekhar, the question is to you, sir. The Lodha panel wrote back to you on the 29th with a letter saying that why is an undertaking not being given, and also, the board seems to be cherry picking on what it needs to follow and it doesn't. So this is- are you going to give Let him answer. are you going to give an undertaking very soon? And apparently there was a 2-week time period for also for you to meet the panel. When is that going to happen? I think all of us around this table are here for a selection committee and team declaration.
Very soon I'm going to have lunch. Okay, that's all. Thank you. MSK, there is this talk about MS Dhoni and his thing, having continuous in the one-day team or for this split captaincy to have one captain. What is the selection committee's thoughts on Vijay also is keen on playing until the next World Cup? I think if we really restrict ourselves, it is the test series that we have announced, and we will give an answer at an appropriate time for this. Thank you. You said Hardik Pandya about personality as well. So because we all know that he is a bit hyper and he is bit, this thing he's being because one all-rounder that we, after Kapil Dev, we really looking out for a very good all-rounder, and under Rahul has really worked. Rahul Dravid has been really working on him on the mind aspect, because I was a part of that A tour where he worked so much on his mind, and now Anil is actually really guiding him. So that's what I mean to say. And Has he been spoken to by you or you? yeah, of course. No, we know he. तो ये है चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद, विकेटकीपर होते थे और आज उन्होंने भारत की टीम की घोषणा की है जो पहले 2 टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। हाइलाइट्स ये है कि रोहित शर्मा को सर्जरी की जरूरत है, वो 6 से 8 हफ्ते बाहर हो सकते हैं। हाईलाइट ये भी है कि केएल राहुल और शिखर धवन दोनों अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं, तो उनको टीम में नहीं रखा गया। मैं फटाफट आपको टीम बता दूं, मुरली विजय, गौतम गंभीर, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, करुण नायर, रिद्धिमान साहा, अश्विन, जडेजा, अमित मिश्रा, शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ जयंत यादव ऑफ स्पिनर। तो ये है भारत के 15 खिलाड़ी पहले और दूसरे टेस्ट मैच के लिए। राजकोट में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम अभी अभी बांग्लादेश से 1-1 की बराबरी कर वापस भारत आई है। और हाईलाइट यह है कि गंभीर टीम में है और साफ तौर पर गंभीर और मुरली विजय 2 सलामी बल्लेबाज होंगे, दोनों को 2 टेस्ट मैच मिलते हैं। और करुण नायर को रखा गया है अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत पड़ी 6 नंबर पर जो रोहित शर्मा की जगह थी, तो नायर पहला टेस्ट खेल सकते हैं। तीनों स्पिनर्स हैं। अमित मिश्रा टीम में है और वैसे भी इंग्लैंड की अगर आप कमजोरी देखें राइट आर्म लेग स्पिनर्स के खिलाफ, तो अमित मिश्रा के 11 खेलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चेतन जी है मेरे साथ। चेतन जी, कोई सरप्राइज नहीं, लेकिन यह है कि हाँ, आपके ज्यादातर खिलाड़ी चोटिल हैं और अच्छी बात यह है कि ये टीम मैनेजमेंट, ये कप्तान विराट कोहली चाहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी चोट खाकर बाहर जाता है वापस आए फिट होकर, लेकिन एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेलकर अपनी फिटनेस का सबूत दे, तभी वो 11 में या 15 में आता है। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टीम से आप बाहर जा रहे हैं, अनफिट हो जा रहे हो, और उसके बाद आप जब लौट कर आ रहे हो तो कितने फिट हैं कितने फिट नहीं है, तो ये तो आपको जो है टेस्ट मैच में कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि टेस्ट मैच बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इंटरनेशनल मैच होता है और जीत हार के सवाल होता है, परफॉर्मेंस का सवाल होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो रखा है उन्होंने बिल्कुल सही रखा है ये, कि आप एक मैच रणजी ट्रॉफी मैच खेलिए, अपना फिटनेस वहाँ पर जो ईशांत शर्मा ने खेला, ईशांत शर्मा ने खेले हैं, और मैं समझता हूँ कि बॉलिंग भी उन्होंने बहुत की है, 17 ओवर भी उन्होंने बॉलिंग की है एक इनिंग के अंदर, तो इसी की वजह से वो जो फिटनेस देखने के बाद ही उनको टीम में वापसी मिली। और अगर आप 11 देखें, जो 11 होनी चाहिए मेंटली, वो भी बड़ी साफ दिखती है। अगर आप तीनों स्पिनर्स को खिलाएंगे, अश्विन, जडेजा और मिश्रा को, तो 2 तेज गेंदबाज शमी और ईशांत लगते हैं और 5 ही बल्लेबाज खेलेंगे। लगता नहीं है कि करुण नायर को शायद पहले टेस्ट मैच में मौका मिले। आपके पास मुरली विजय, गंभीर, पुजारा, विराट कोहली, रहाणे और रिद्धिमान साहा विकेटकीपर, शायद ये 11 के साथ आप पहला टेस्ट में उतर सकते हैं। देखिए, विराट कोहली जो है वो एग्रेसिव कैप्टन है, और वो हमेशा बोल रहे हैं कि मैं तो 5 बॉलर से खेलूंगा, मैं 4 बॉलर से नहीं खेलूंगा, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर से। और जब आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर से खेलते हैं तो फिर नेचुरली आपकी बैटिंग थोड़ी कम जाती है। की होम सीरीज जो है वो 6 बल्लेबाजों के साथ खेले हैं, एक कम गेंदबाज के साथ खेले हैं। वेस्ट इंडीज में जरूर उन्होंने 5 खिलाए थे, लेकिन यहां पर उन्होंने 4 ही गेंदबाज खिलाए। देखिए, हो सकता है कि उनके बैट्समैन को लग रहा है कि बैट्समैन जो है वो फॉर्म में है, और रिद्धिमान साहा ने क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए एक बैट्समैन उन्होंने कम कर दिया है।
ये अब बहुत निर्भर करेगा कि विकेट किस प्रकार की है। यदि उनको लगता है कि बहुत टर्निंग विकेट नहीं है और ज़्यादा स्पिनर को मदद नहीं मिलेगी तो फिर छः बैट्समैन भी वो खिला सकते हैं। और यदि लगता है कि टर्निंग विकेट है और जीतने की बिल्कुल बहुत कुछ निर्भर करता है उनकी मानसिकता क्या है, कप्तान की मानसिकता क्या है, किस मानसिकता से वो खेल रहे हैं, किस मानसिकता के साथ वो इस दौरे के ऊपर उतर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो जीतना है और पहले दिन से पहले टेस्ट मैच से मुझे जीतना है, तो फिर 5 बॉलर भी वो खिला सकते हैं। और वैसे भी देखें ना आप, रिद्धिमान साहा हुए, रविचंद्रन अश्विन हुए, ये दोनों बल्लेबाज के तौर पर अगर आप 6 और 7 नंबर पर रखें तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही और शायद ये कॉन्फिडेंस भी देता है कप्तान को, कोच को कि आप एक अतिरिक्त गेंदबाज खिला सकते हैं। मैं फिर से आपको जो टीम है वो बता दूं, कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है, चौंकाने वाला नाम नहीं। हालांकि हार्दिक पांड्या एकदम टेस्ट टीम में ले लिए गए, ये थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। युवराज सिंह के रनों को तवज्जो नहीं दी गई है, साफ तौर पर फिटनेस शायद एक इशू हो सकता है टेस्ट मैचों में। लेकिन टीम मैं फटाफट आपको बता दूं, ये 11 के लिहाज है, उसके बाद देखते हैं कि 11 के बाद बाहर क्या होता है। मुरली विजय, गौतम गंभीर, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, करुण नायर, ये मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, ओपन भी कर लेते हैं। अब एक युवा खिलाड़ी तो ये कहता है कि मुझे मौका दिया जाए, जल्दी से मौका मिले, और ये भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है। रिद्धिमान साहा, अश्विन, जडेजा, मिश्रा, तीनों स्पिनर्स हैं। उसके अलावा शमी, ईशांत, उमेश और हार्दिक पांड्या को भी रखा गया है, और जयंत यादव राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक बैकअप स्पिनर के तौर पर। अब आपने 3 नहीं 4 स्पिनर रखे हैं और यह साफ कर देता है कि विकेटें किस तरह की होंगी। हालांकि 4 स्पिनर खेलना तो खैर इम्पॉसिबल है। नहीं, 4 स्पिनर तो नहीं खेलेंगे, 3 ही स्पिनर खेलेंगे। और यहाँ थोड़ा समय जरूर तुलना यदि मैं करता हूँ कि न्यूजीलैंड टीम की और इंग्लैंड की टीम की, इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है और वो खेल चुके हैं, यहाँ पे कुछ प्लेयर उनके आ भी चुके हैं पहले। तो थोड़ा मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है थोड़ी सी कमज़ोर थी, ये टीम इंग्लैंड की टीम थोड़ी मजबूत है। तो उसके हिसाब से मैं समझता विराट कोहली जो है अपना जो अटैक रखेंगे उसके हिसाब से रखेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 4 स्पिनर ये आप टीम के अंदर रख रहे हैं तो फिर मैसेज जो है बिल्कुल क्लियर है कि आप जो है थोड़ी सी स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा जो है निर्भर होगा। बहुत ज़्यादा ये पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश में इंग्लैंड की टीम ने स्ट्रगल किया। पहला टेस्ट मैच बड़ा करीबी था, वो जीते, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच वो हार कर आए हैं। और इयन बॉथम ने कहा कि मैं तो जज नहीं करूंगा इंग्लैंड की टीम को बांग्लादेश में, मैं जज करूंगा इंग्लैंड की टीम भारत में आकर क्या करती है। लेकिन ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, 5 टेस्ट मैच वैसे में अपने आप में इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि टीम जब शुरू में हार जाए तो उसको वापसी का मौका मिलता है, जो 84-85 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। इंग्लैंड बॉम्बे टेस्ट मैच हारा, दिल्ली जीता और उसके बाद सीरीज भी 2-1 से इंग्लैंड जीत कर गया था। रोहित शर्मा के लिए झटका है, रोहित शर्मा के फैंस के लिए झटका है, क्योंकि जब लग रहा था कि टीम में उनकी जगह बनती जा रही है, टेस्ट मैचों में भी उनको ऐसी चोट लगी आखिरी वनडे मैच में कि चीफ सेलेक्टर के मुताबिक हो सकता है उनको सर्जरी की जरूरत पड़े। 6 से 8 हफ्ते वो बाहर भी हो सकते हैं। Unfortunately, we all have seen on TV that Rohit Sharma has been badly injured, and there is a scope of even surgical intervention. So there is a chance that he is going to be assessed in England, and in case if it is required, he might have to undergo surgery. In case if he doesn't require a surgical intervention, it could be 6 to 8 weeks. If it is required, then it could be more. भुवनेश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि वो फिट हैं, वैसे उनकी रिपोर्ट आ गई है फिट है, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी, ये टीम मैनेजमेंट, ये कप्तान चाहते हैं कि जो खिलाड़ी अनफिट होकर बाहर गया है वो जब फिट हो तो वापस आकर एक मैच खेले। हालांकि शमी शायद फिट थे, उनको आराम दिया गया था। रोहित शर्मा चोटिल हैं, भुवनेश्वर को अभी जब तक उन्होंने मैच नहीं खेला टीम में कंसीडर नहीं किया गया, और शिखर धवन और केएल राहुल के साथ भी ऐसा ही है। यानी कि गंभीर को कम से कम 2 टेस्ट मैच मिलते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।